So students, today we get a topic of equation of a line that is in normal form. We know that there are many equations of a line that they are written in different form. Let us discuss about some of them. First one is point slope form. Point slope form, you will be given a point and a slope of the line. So the point, let it to be specific, is x naught comma y naught. That will be the point, and slope, that is m, that is equal to tan theta, will be given in this point slope form. Let us discuss about the second form that we have studied, that is 2 point form. In 2 point form you will be given in 2 point form you will be given 2 points. Okay, let's say that one is p1 x1 comma y1 and other is p2, or you may name it something else, x2 comma y2. In that case we have to calculate the slope from these 2 points as well as from a general point that we generally call as पी एक्स कोमा वाई. सेम इज द केस हेयर. ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा है. ठीक है, पी एक्स कोमा वाई यहाँ भी यूज़ करते हैं. थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. In slope intercept form we will be given slope as well as the intercept either on x-axis or on y-axis. Most probably the slope will be given on y-axis and the equation of line will be y is equal to mx plus c. When the line is on x, when the intercept is on x-axis, the equation will be y is equal to m x minus t. Okay, and the fourth form was simply intercept form. In intercept form, the two intercepts on different axes, that is x-axis and y-axis, will be given. So equation of the line will be x upon a plus y upon b is equal to 1, where a is the intercept on x-axis and b is the intercept on y-axis. So let us come to the today's topic, that is normal form. So equation of a line in normal form. Let us first discuss about some name used here. देखो, एक अगर वी टेक टू लाइन्स L1 एंड L2, ठीक है, हमारे पास में दो लाइन है. सपोज वन इज दिस एंड अदर इज दिस वन ड्रॉन ऑन इट, एंड बोथ ऑफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. तो सपोज इस लाइन का नाम है L1 और ऊपर वाली लाइन का क्या नाम है L2. देन वी कैन राइट दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. Similarly, it is very easily visible that L2 is also perpendicular to L1. In that case, we use a different name, that L2 is normal to L1. So we can say that L1 is perpendicular to L2, then L2 is normal to L1, or L1 is normal to L2, then L2 is perpendicular to L1. They both are vice versa. So now in the normal form, what we require and what we will be given, let us discuss about that. Okay, so in normal form, लिख लेते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में आप लोगों को नॉर्मल दिया हुआ होगा, यानी नॉर्मल के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई गई होंगी. तो नॉर्मल के लिए मुझे दो लाइन्स चाहिए, एक लाइन जिसके वो परपेंडिकुलर है और एक लाइन जिसके वो खुद नॉर्मल है. तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. सो दिस वन, फर्स्ट वन इज सच एन ओरिएंटेशन दैट वी कैन गेट. देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या है. दिस इज द ओरिजिन O एंड दैट इज 0 0 विद कोऑर्डिनेट्स. ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, जो कि आप सब लोग पहले से जानते हैं. ये जो इक्वेशन, जो लाइन है रेड कलर की, इसका नाम है एल, जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. सो अगर ये लाइन है तो अगर इसके ऊपर मुझे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इस परपेंडिकुलर की वजह से इसका नाम नॉर्मल बन जाएगा, या इसकी वजह से उसका नाम नॉर्मल बन जाएगा. ठीक है, हाल फिलहाल उसका नाम नॉर्मल दिया गया है. तो नॉर्मल के लिए मुझे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है कि वो परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास होता है. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है. यहाँ पे हम लोग उसको बना देते हैं, दिस वन इज 90 डिग्री. ठीक है, ये आपको दिया जाएगा. इस पॉइंट का नाम जो है मेरे पास में क्या है, ए. और अब अगर ये लाइन एल है, जो कि रेड कलर की लाइन है एल, इसका ब्लू कलर से नाम लिखा गया है, तो हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी होगी वो देख लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गिवन द लेंथ ऑफ नॉर्मल. ठीक है, हम लोगों को दिया होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल की लेंथ भी कहाँ से, ओरिजिन से, और कहाँ तक, इस लाइन तक. तो ये जो हमारे पास में ओ से ए तक है, दैट इज इन दैट केस ओ ए, एंड इट इज ऑलवेज शोन विद स्मॉल लेटर पी. पी से इसको शो किया जाता है, तो इट इज रिटन बाय पी. ठीक है, second one that will be given to you, that there are two lines, one is red colored and one is blue colored. That red colored line is making some angle with the positive x axis, and similarly blue colored line is also making some angle with the positive x axis. रेड कलर की लाइन का स्लोप जो है वो थीटा के टर्म्स में हम मोस्टली रखते हैं, तो इसका नाम हमने रखा है एंगल का थीटा. और जो नॉर्मल है इसके लिए हमने यूज़ किया वर्ड ओमेगा. ठीक है, ओमेगा यू विल बी एक्वाइंटेड सून. ओमेगा इसको बोलते हैं, इसका नाम अगर ओमेगा है तो ये एक ओरिएंटेशन है. हालांकि हम इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हम और ओरिएंटेशन बना लेते हैं कि हमारे पास में और कौन से ओरिएंटेशन हो सकते हैं. थोड़ा सा हमको ड्रॉ कर देते हैं, बाकी फिर बाद में इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से. ठीक है,
तो ऐसा एक ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है, एक ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो सकता है, और अगर नीचे जाएंगे तो एक ओरिएंटेशन कुछ ऐसे हो सकता है, और लास्ट में एक ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर इनकी बात करें नॉर्मल्स की, तो यहाँ पे जो नॉर्मल्स बनते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं को दिखा देते हैं। इस सेकंड वाले केस के अंदर यहाँ सेंटर से यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, सॉरी ओरिजिन से नॉर्मल बनाएंगे। इस केस के अंदर यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे, इस केस के वो नॉर्मल बना दिया जाएगा, यहाँ से नॉर्मल बना दिया जाएगा यहाँ तक, और सिमिलरली यहाँ पर ओरिजिन से यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया जाएगा। और नेम सबके वही रहेंगे, एंगल सब लोगों के वही रहेंगे, ठीक है। नेम का मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस है उसको पी बोला जाएगा, दैट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना रही है दैट विल बी ओमेगा। Similarly, in the third case, this is also P, and this angle made by the line with a positive x-axis, और एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा ओमेगा। पॉजिटिव का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज चलना है। एंड इन द फाइनल वन दैट एंगल विल बी शोन एज दिस, एज शोन इन द फिगर, एंड यहाँ पे ओमेगा बन जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा P। ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब इस ओरिएंटेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब इनको हटा देते हैं, क्योंकि ये काम हो चुका है, ठीक है, हम लोगों का। और इसको हमें नहीं रीड करना, हमें ऊपर वाले को रीड करना है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है। इसके बारे में रीड करेंगे, जो रेड कलर वाली लाइन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। देखो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन अधूरी है, तो इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा हमें पूरा करना है। तो इसके अंदर मुझे कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये यहाँ ए से लेकर और ओ से लेकर, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट का नाम रख दिया जाए, सपोज करो उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी उसकी, मान लो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया एस, ठीक है। तो हमारे पास में ओ एस एक ट्रायंगल है, लेकिन ओ एस से मेरा काम नहीं होगा। तो देखो हम लोगों ने क्या करना है, हमें हमें पहले ये ध्यान रखना है कि दोनों लाइंस ब्लू और रेड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी मैं स्लोप निकाल लूँ, ताकि उसकी स्लोप से इसकी स्लोप निकल जाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस ए पॉइंट से पास हो रही हैं। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ और चाहिए। देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, एक तो ये चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट मेरा रिक्वायरमेंट्स है। सेकंड मेरा रिक्वायरमेंट है कि जो मेरी ओ ए नाम की लाइन है उसका मुझे मिल जाना चाहिए स्लोप। इसका अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम लोग 9th क्लासेस में करते थे पहले, छोटी क्लासेस के अंदर, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से एक जाएगा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा, एक उसको जाने दो, ठीक है। एक यहाँ पे आएगा, एक सेकेंड इसको बना देता हूँ ढंग से। ऐसा कुछ फिगर हम लोगों को मिल रहा होगा जहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसी ए पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस के ऊपर। तो मुझे ये हाइट अगर पता चल जाए तो मुझे इसका वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, और अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए जो मैंने लाइन ब्लैक से ड्रॉ किया है, तो मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई होगा, जिसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ ये वाई है, और ये मेरे पास में कौन है, एक्स है। अब देखो जो मेरे पास में एक ट्रायंगल बन रहा है उसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से आप लोग देखेंगे इस ट्रायंगल के बारे में बात करूँ, उसको मैंने येलो कलर से फिलअप किया, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूँ तो मेरे पास में इसके जो वर्टेक्स हैं उनके नाम रख दिए जाते हैं। सपोज करो कि इसका नाम यहाँ पे एम है, इसका नाम मेरे पास यहाँ पे एन है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जो इसमें से बाहर लिया गया है। इस टाइप का फिगर हम लोगों को मिल रहा होगा। मैंने यहाँ से ए ओ एम नाम का ट्रायंगल बाहर निकाल लिया, ठीक है। देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ ओमेगा बन रहा है, दैट मीन्स दिस पार्ट इज बेस, ठीक है, बेस हो गया है। ये इसका नाम परपेंडिकुलर है और इसका नाम हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस की वैल्यू ऑलरेडी मुझे मालूम है, दैट इज पी। अब हमको पता है कि मेरे पास हाइपोटेनस पता हो, और अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो, तो मेरे पास में पी बी पी अपॉन एच एस बी के अंदर से मुझे वो रेशियो लेने हैं जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट है। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए है, हाइपोटेनस गिवन है, तो मैं इस रेशियो को ले लूँगा, दैट इज साइन थीटा। बेस चाहिए, हाइपोटेनस गिवन है, सो आई विल टेक कॉस थीटा, एंड थीटा इज नॉट थीटा, थीटा इज ओमेगा, सो आई विल राइट साइन ऑफ ओमेगा इज बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर नाम मेरे पास में क्या है, ए एम, और हाइपोटेनस का नाम है पी, तो मैं लिख दूंगा ए एम अपॉन पी। सिंपली अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा तो मिलेगा ए एम इज इक्वल टू पी साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कॉस ओमेगा लूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस ओमेगा इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज इन दैट केस ओ एम अपॉन पी, एंड दैट विल गिव अस ओ एम इज इक्वल टू पी कॉस ऑफ ओमेगा। ये मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से मुझे ए एम और ओ एम की वैल्यू मिल चुकी है। यानी मेरे पास में एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका नाम चेंज करके लिख सकता हूँ, यानी जो ये हमारे पास में ओ एम है जो कि एक्स है उसका नाम रख सकते हैं पी कॉस ओमेगा, एंड यहाँ जो ऊपर है वाई इसका नाम रख सकते हैं हम लोग पी साइन ओमेगा। अगर दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो हम इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख सकते हैं पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स, ठीक है।
देखो कितना आसान था, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाले। अब मैं चाहता हूँ सेकंड वाली लाइन की मुझे स्लोप भी पता हो, ठीक है, ओए वाली लाइन की स्लोप पता हो। देखो ओए वाली लाइन की स्लोप निकालना कितना आसान है, क्योंकि ओए वाली लाइन का जो एंगल है वो ओमेगा है। ओमेगा होने की वजह से इसकी जो स्लोप होगी दैट विल बी सिंपली टेन ऑफ ओमेगा, ठीक है, टेन ओमेगा हो जाएगी इसकी स्लोप। अब दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर होने के वक्त पे हमको कंडीशन मालूम है कि परपेंडिकुलर होने टाइम पे m1 m2 इक्वल टू कितना होता है -1, दैट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। पर अगर एक का नाम m1 हो और एक का नाम m2 हो तो उसका इक्वल टू -1 हो जाएगा प्रोडक्ट। सपोज करो एल वाली लाइन की जो स्लोप है वो m है, और ये जो टेन ओमेगा है इसका नाम हम यहाँ पे पुट कर देंगे m2 की जगह, क्योंकि ये तो स्लोप ऑलरेडी पता चल गई है। m1 की जगह मैं नाम रख दूंगा m, यहाँ पे मैं नाम रख दूंगा टेन ऑफ ओमेगा, इट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा -1। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा m इज इक्वल टू -1 अपॉन टेन ओमेगा, दैट इज माइनस कॉट ओमेगा, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास में माइनस कॉट ओमेगा। देखो कॉट ओमेगा को मैं कोट ओमेगा की तरह यूज़ नहीं करूंगा, कोट ओमेगा को मैं चेंज कर दूंगा। हम रीजन जानना चाहते हैं क्यों, मैं इसको चेंज कर दूंगा कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा में। कारण ये है कि जब मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुका है ए, ठीक है, एक पॉइंट मिल चुका है ए जिससे रेड कलर की लाइन पास हो रही है, और मुझे इस रेड कलर की लाइन की स्लोप भी मिल चुकी है। तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जब लगाऊंगा तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट यूज करने पड़ेंगे, पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा, क्योंकि ये साइन और कॉस में है, इसलिए हमने कॉट को भी किस में चेंज कर दिया, साइन और कॉस में, ठीक है। अब हम इसके अंदर लगाते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम जानते हैं, अगर कोई लाइन एक्स नॉट कोमा वाई नॉट से पास हो रही हो और उसकी स्लोप उसके पास में m हो, तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट, इट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ये उसकी इक्वेशन होती है। अब हमारे पास में जो लाइन है वो एक्स नॉट कोमा वाई नॉट का नाम जिससे जा रही है उसका नाम आप लोग देखें ऊपर से फिगर के अंदर, दैट इज पी कॉस ओमेगा एंड पी साइन ओमेगा, ठीक है। तो पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा से जा रही है, तो मैं लिखूंगा पी कॉस ओमेगा कोमा पी साइन ओमेगा, ये हो जाएगा। और जो स्लोप है उसका नाम मेरे को यहाँ से ऑलरेडी पता चल रहा है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर जस्ट पुट करना, नथिंग एल्स। तो व्हाट आई विल गेट इज दैट y माइनस पी साइन ओमेगा, यहाँ से मिल जाएगा पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू m की जगह मैं रख सकता हूँ माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा, ठीक है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस पी कॉस ऑफ ओमेगा, ये हो गया। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, तो मुझे यहाँ से मिलेगा y साइन ओमेगा, देख लो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ओमेगा एंड माइनस माइनस हो गया प्लस पी कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा। इस साइन स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसपोज किया जाएगा तो वो उसके साथ जाके ऐड हो जाएगा और मिलेगा मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि ये माइनस वाला इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो मिलेगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, दैट इज पी इंटू वन, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा हमेशा क्या होता है 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन वी आर गिवन the length of normal and the angle made by the normal with the positive angle made by the normal with the x-axis, ये अगर हमें दिया हुआ हो तो this is the equation of line. So it was quite easy. So I hope you will practice it and solve some questions based on it. Now the next topic is general equation of a line, ठीक है। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब है कि हम मोस्टली लाइन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो लाइन का मतलब होता है जिसकी इंडेक्स 1 हो, मतलब उसकी वो एक लीनियर ग्राफ को फॉलो करती हो, यानी इंडेक्स 1 होने पर वैसा हो सकता है। और जनरल इक्वेशन मतलब जो सबको सूटेबल हो, ठीक है। हमने इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी फर्स्ट डिग्री की दो वेरिएबल की जनरल इक्वेशन हो तो उसको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू मेरे पास में कितना होता है 0, जहाँ पे ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये मेरे पास में वेरिएबल होता है और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ठीक है। अब ए और बी इसमें एक साथ जीरो नहीं हो सकते, अदरवाइज सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन के लिए ए या बी में से किसी एक का जिंदा होना जरूरी है, या फिर आप लोगों के लिए पास दोनों को जिंदा होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में केस रहता है। अब हमारे को क्या करना है कि जो जनरल फॉर्म है इससे या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, मतलब जो अलग अलग फॉर्म्स हमने पढ़ी थी ऊपर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, या तो इससे ये बनाओ या इसको उसमें कन्वर्ट करो, मतलब कन्वर्जन करना कुल मिला के, ठीक है। तो जो अब जनरल इक्वेशन है उसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखो इजीली बता सकते हैं, पहला अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है आप लोगों को स्लोप दी होती है, इंटरसेप्ट दिया होता है, जबकि जनरली वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरे पास में इक्वेशन होती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है ये इसके जैसी दिखे का मतलब रिड्यूस हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो
रिड्यूस करना सबसे इजी केस है, ठीक है। क्या करना है कि जैसा जैसा जिसमें रिड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंगली काम करो। बोलता है वाई को एकदम अकेला छोड़ दो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर चेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है। फिर बोलता है वाई के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी दोनों साइड में वाई से डिवाइड बी से डिवाइड कर देंगे, देन आई विल गेट वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, ये मेरे को मिल जाएगा। अब देखो एक ही चीज़ को आप लोग लेके चलेंगे, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ पर भी मेरे पास में क्या है, वाई है। देखो यहाँ भी वाई, वहाँ भी वाई, यहाँ पे मेरे पास में एक्स है, यहाँ पे मेरे पास में एक्स है। तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है इस केस में अगर एम है तो यहाँ से मुझे मिलेगा एम इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। और जो यहाँ वाला सी है जो कि छोटा सी होता है मोस्टली, और यहाँ वाला जो सी है जो कि बड़ा कैपिटल सी है, और ये बी भी कैपिटल है, तो हम लोग लिखेंगे सी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। तो ऐसा यूज़ करने पर हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका कोई फॉर्मूला से नहीं याद करना, हर इक्वेशन के अंदर आप इजी रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होने के बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास में सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करूँ तो मेरे पास में फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इट इज इक्वल टू कितना होता है, 1। देखो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 में से ए तो होता है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट और बी होता है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। देखो हमें गिवन क्या है, गिवन की जो लाइन है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को याद रहे कि हम किस पे काम कर रहे हैं। ये मेरे पास में गिवन लाइन है, ठीक है। इस गिवन लाइन को हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो क्या क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमारे को पास चाहिए एक्स और उसके साथ कोई भी काम चल जाएगा। तो ये मेरे पास में एक्स अवेलेबल है तो मैं लिख दूंगा ए एक्स, ठीक है। फिर बोलता है प्लस का साइन आ जाए, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, प्लस को जाने दो एक बार के लिए। बोलता है बी वाई, यहाँ से मैं बोलता है वाई का कोएफिशिएंट कोई भी होगा चलेगा, ये बी छोटे वाला है वो बी बड़े वाला है, तो ये नहीं कह सकते ये बी और बी वो सेम है, ठीक है। प्लस हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे बी वाई, और बोलता है इज इक्वल टू, ये जो 1 है ना, इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के अलावा जो भी है उसके अलावा सबको राइट हैंड साइड में भेज दो। अभी मेरे पास में अल्फा एक सिर्फ सी है, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं यहाँ सी नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस सी से। अगर ऐसा होता है तो हम लोग लिखते हैं इट इज इक्वल टू ए अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब देखो ये बोलता है कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट हो वो एक्स के नीचे आना चाहिए, ठीक है। 1 अपॉन ए, हाल फिलहाल इस केस में क्या है 1 अपॉन ए। तो देखो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 5x, ठीक है, 5x लिखा हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 1 अपॉन 5 लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे घूम के ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 1 अपॉन माइनस ए बाई सी, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, a अपॉन सी। तो ये जो c है ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, y अपॉन y के साथ में आ जाएगा, दैट इज y डिवाइडेड बाई 1 divided by minus b upon c, then this c will also go up here, it is equal to 1, ठीक है। ऐसा कर लेने पे हमारे पास मिलेगा x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। देखो ये क्यों ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म करवा के क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछना चाहेगा कि अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप ये बताओ कि एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट कितना है, सिंपली। तो एक्स आपका इंटरसेप्ट इतना कितना कैसे निकाला जाता है, दैट के आपको शॉर्टकट यूज़ करना हो तो जो भी वैल्यू यहाँ दी गई है उसको एक्स वाले के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सिंपली माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा। और कोई बोले कि वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बताओ तो जो यहाँ पे दिया गया उसको सीधा सीधा इससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा माइनस सी अपॉन बी, दैट इज द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लेंथी जो है हमारे पास में वो है कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदला जाए, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म बदलने के लिए आपको देखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। देखो थर्ड पॉइंट में एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ये हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म होती है। ये थोड़ा ओमेगा बाई डब्ल्यू है जैसा नहीं बनाना इसको, ठीक है। ये ओमेगा बाई देखो पी हो गया, और इसी को हमें कन्वर्ट करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, या बोले इसको कन्वर्ट करना है इसमें, मोस्ट प्रोबेबली इसी को इसको अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने पे देख रहा हूँ एक्स के साथ में जो भी है तो एक्स के साथ में कुछ है यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर प्लस करके वाई के साथ में, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलता है इसके अलावा जो भी है वो सब राइट हैंड साइड में भेज दो, देन वी विल राइट इट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी हो गया, इसके जस्ट ऊपर से मैं एक बार थोड़ा सा इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, कॉस ओमेगा एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कॉस ओमेगा अलग चीज़ है और एक्स एक अलग चीज़ है, प्लस साइन ओमेगा और साथ में क्या आ जाएगा वाई इट इज इक्वल टू मेरे पास में क्या बन जाएगा पी। देखो अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स का साथी जो है वो कॉस ओमेगा है, एक्स का साथी ए है तो ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा हो गया, ठीक है।
y का साथी साइन ओमेगा है, y का साथी b है तो y इक्वल टू साइन ओमेगा हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो इनका रेशियोज हमें लेना पड़ता है, क्योंकि ये इक्वेशन सेम है लेकिन इनकी यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड में सेम नहीं होने की वजह से ये है कि इनका जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो किसी और रेशियो के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो को हम इस टाइप से लिख सकते हैं सच दैट, देखो कितना आसान है इसको लिखना, इट इज इक्वल टू, देखो कैसे रेशियो लिख सकते हैं, रेशियो को एक मिनट छोड़ दो, कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा अपॉन पी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से मेरे को मिलेगा साथ में साइन ऑफ ओमेगा अपॉन पी इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाली को ट्रांसफॉर्म कर दूँ तो देखो यहाँ पे माइनस सी है, इसको इधर भेज दो नीचे, ए अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। अब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, या तो वहाँ पे आप रेशियो में लिख लो, अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेट कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं तो हम इस लाइन को सीधा सीधा यहाँ रख सकते हैं तो मैं कोएफिशिएंट को बराबर ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा तो कंपेयर करके देखूंगा कि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कॉस ओमेगा अपॉन सी है और यहाँ पे ए अपॉन माइनस सी, तो दे बोथ विल बी इक्वल। सो व्हाट आई कैन राइट इज कॉस ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन सी, ठीक है, एंड साइन ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने से मैं यहाँ से सिर्फ कॉस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन सी इंटू पी, ठीक है, यहाँ से हो जाएगी पी है, ठीक है, और साइन ओमेगा अगर सिर्फ निकालना हो तो माइनस बी अपॉन सी इंटू पी, यहाँ पे हो जाएगा पी। देखो ये मैं आपको बताया है वहाँ से डिवाइड करके, आप चाहो तो इसको 10th क्लास का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के भी कर सकते हो, जब आप लोगों को ये नहीं पता चले कि इक्वल करना है तो आप इसको रेशियो में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि जो इसका कोएफिशिएंट है कॉस ओमेगा एक्स वाले का और इसका कोएफिशिएंट जो है ए है, उनका रेशियो वही होगा जो साइन ओमेगा अपॉन बी का है, और जो फाइनल रेशियो जब सबसे पीछे आपके पास में दैट इज पी अपॉन माइनस सी, ये रेशियो सेम रहता है। रेशियो से करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब साइन ओमेगा कॉस ओमेगा निकालने के बाद में हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ लगाऊं तो साइन का स्क्वायर करना है, अगर ये साइन ओमेगा है तो मैं इसका स्क्वायर रेड पेन से लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा विल बी माइनस का तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और अगर यहाँ से मैं करूँ तो स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करके मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ नहीं लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, राइट करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, सिंपली कितना आ जाएगा 1। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो मुझे देखो करना क्या है वो जरूरी जानना, देखो इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए कॉस ओमेगा, या फिर या तो ओमेगा पता हो, ओमेगा निकालना आसान नहीं है इसमें से, कॉस ओमेगा पता हो, साइन ओमेगा पता हो क्योंकि एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हो तो एज इट इज रख जाएंगे, और मुझे पी निकालना खास कर से, तो मैं यहाँ से पी निकाल लूँगा। पी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पहले पी स्क्वायर कॉमन लेंगे ऊपर से, और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा सी स्क्वायर, बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ से मैं सिंपली राइट कर सकता हूँ पी, मुझे पी ही चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखने के बाद में यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मिल सकता है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू मिल चुकी है, पी की वैल्यू मिल चुकी है। देखो पी का साइन हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए क्योंकि पी इज ए लेंथ, ठीक है, और पी मेरे पास में लेंथ है तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि वो साइड पॉजिटिव हो। अब कुछ बोलेंगे कि सर लेंथ तो जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर, जैसे अगर ऐसे लेंथ हो तो ये पॉजिटिव और अगर ऐसे हो तो नेगेटिव। देखो वो तब है जब आप किसी एक डायरेक्शन को चूज़ कर लेते हैं। अभी हमारा काम सिर्फ एक ही डायरेक्शन से चल रहा है तो मैं उसके अंदर माइनस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर चलूँगा प्लस। तो वी विल चूज पी इन सच ए वे दैट इट्स साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मेरे पास में हो गया, ठीक है। अब देखो अगर पी मेरे को मिल चुका है तो मैं चाहता हूँ पी के अलावा मेरे पास में कॉस ओमेगा मिल जाए एक बार। यहाँ से देखो पी को अगर ध्यान से देखेंगे तो पी के अंदर से कुछ भी कॉस ओमेगा वगैरह फलाना दिखाना कुछ नहीं है। यहाँ के आपके पास में सी ए और बी है जो कि मोस्टली यहाँ से आए हैं, ए से बी से सी से। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा आ जाए तो बस वही निकालना आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को निकालना कॉस ओमेगा तो वैल्यू यूज़ करो ऊपर वाली। यहाँ देखो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर दिखा दिया हुआ कॉस ओमेगा क्या है माइनस ए अपॉन सी इंटू पी और साइन ओमेगा क्या है माइनस बी अपॉन सी इंटू पी। यहाँ पर मैं डाल दूंगा वैल्यू तो मेरे को मिल सकती है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से रख कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है।
यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा इसकी एंड आई विल राइट डाउन दैट कॉस ऑफ ओमेगा इट इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन सी, तो उसको माइनस ए अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए अपॉन सी इंटू पी लिख रखा है, तो पी का वैल्यू ये रहा, यहाँ से पुट कर दो, प्लस माइनस वो जो कि लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपॉन सी इस इंटू सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कट जाएगा। देखो ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा प्लस, तो अल्टरनेटिवली मुझे वापस से प्लस माइनस मिल गया, ठीक है, तो मैं इसको वापस से इस फॉर्म में लिखूंगा प्लस माइनस, और मेरे पास में ऊपर बच गया ए और नीचे बच गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं साइन ओमेगा कैलकुलेट करना चाहूँ तो साइन ओमेगा मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन सी इंटू प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, वापस से आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस को प्लस बनाएगा, प्लस उसको माइनस बनाएगा, सॉरी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस वापस बनेगा, बी से बच जाएगा और बाकी सी कट जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो आपको कॉस ओमेगा की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, साइन ओमेगा की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी और पी की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। यहाँ से निकालने के बाद में आपको पुट करना है इस लाइन के अंदर, दैट इज एक्स इंटू कॉस ओमेगा प्लस वाई इंटू साइन ओमेगा इक्वल टू पी। तो आप लोग यहाँ से इसको पूरा पूरा डेरिव खत्म होने के बाद में इजीली पुट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइन्स एंड द इक्वेशन ऑफ